بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دریائے لیتوانی کے کنارے چھوٹی بڑی چٹانوں کے اندر دور دور تک لاشیں بکھری پڑی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے تھوڑی دیر پہلے وہاں کوئی بڑا معرکہ پیش آیا ہو، جس کی بنا پر دور تک لاشیں بکھری پڑی ہوں۔ بارش اپنے زوروں پر تھی، ندی نالوں کا پانی اپنی پوری طغیانی اور زور سے بہہ نکلا تھا۔ مشرق سے سورج طلوع ہونے کے باعث چاروں طرف روشنی پھیل کر بکھر گئی تھی۔ دریائے لیتوانی کے کنارے دور دور تک پھیلی ہوئی لاشوں کے درمیان کھڑی ایک چٹان کی اوٹ سے دو بوڑھے نمودار ہوئے اور چٹان سے ذرا سا سر اوپر نکال کر ان دونوں نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ بارش ابھی تک زوروں پر تھی اور ان دونوں بوڑھوں کا لباس خوب تر تھا۔ شاید وہ ان مرنے والوں کے بچے ہوئے ساتھی تھے جن کی لاشیں دریائے لیتوانی کے کنارے بکھری پڑی تھی۔ چٹان کی اوٹ سے سر نکال کر اپنے اطراف کا جائزہ لینے کے بعد ان میں ایک اپنے دوسرے ساتھی کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ دریائے لیتوانی کی طرف سے ایک سوار نمودار ہوا۔ بڑی تیزی اور بڑی سرکشی کے ساتھ اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا وہ آیا تھا، اور جس چٹان کی اوٹ میں وہ دونوں بوڑھے چھپے بیٹھے تھے، اس چٹان کے قریب ہی آ کر اس نوارد نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچی تھی۔ اس کے ایسا کرنے پر اس کا گھوڑا بری طرح ہنہنایا۔ لمحہ بھر کے لیے وہ اپنی دونوں پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو کر الف ہو گیا تھا، پھر وہ کلیلیں کرنے اور بڑی تیزی کے ساتھ فنوتیاں بدلنے لگا تھا۔ ٹھیلے کی اوٹ میں بیٹھے دونوں بوڑھے اس سوار کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سوار تھوڑی دیر تک اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہی بیٹھا اپنے اطراف کا جائزہ لیتا رہا۔ شاید وہ اپنے چاروں طرف بکھری لاشوں کو بڑے تعصب اور افسوس سے دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں بوڑھوں نے دیکھا اس سوار کے گلے میں سلیب لٹک رہی تھی۔ وہ ابھی نو عمر تھا۔ گھوڑے پر بیٹھے ہونے کے باوجود اس کا جسم بتاتا تھا کہ وہ خوب دراز قد ہے۔ جسمانی ساخت اور چہرے کے لحاظ وہ بہت خوبصورت اور پرکشش تھا۔ کم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بوری چھوٹی چھوٹی داڑھی اس کے چہرے پر خوب سج رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ نوجوان سوار بے وصف موسموں کے خزاں آثار لمحوں کے مسافر کی طرح اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہی بیٹھا اپنے اطراف میں بکھری لاشوں کا جائزہ لیتا رہا۔ چٹان کی اوٹ میں بیٹھے دونوں بوڑھوں نے یہ بھی جائزہ لیا تھا کہ وہ سوار اپنی وضع قطع اپنے لباس سے کوئی نوجوان نصرانی راہب لگتا تھا، اور اس کے گلے میں سنہری اور کافی بڑی سلیب بھی لٹک رہی تھی۔ چٹان کی اوٹ میں ان دونوں بوڑھوں کے دیکھتے ہی دیکھتے اس نوجوان راہب نے اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھے ہوئے آہنی عصا پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا، اسے کھولا، پھر عصا کا نوکیلا سرا زمین پر جمایا اور اس کی مدد سے وہ اپنے گھوڑے سے اتر گیا تھا۔ اس کے ایسا کرنے پر دونوں بوڑھوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میرے رفیق، ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ آنے والا یہ سوار کوئی نصرانی راہب ہے اور اس کی نگاہ ہم پر نہیں پڑنی چاہیے۔ یہ اپاہج بھی لگتا ہے، اس لیے کہ اس کے گھوڑے کی زین کے ساتھ اس کا آہنی عصا بھی بندھا ہوا ہے، اس کی مدد سے یہ نیچے اترا ہے۔ اس بوڑھے کو کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ عصا کے سہارے وہ نوجوان راہب حرکت میں آیا۔ وہ لنگڑا کر چل رہا تھا۔ اپنے گھوڑے کو جس چٹان کی اوٹ میں وہ دونوں بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے اس کے قریب ہی ایک پتھر کے ساتھ اس نے باندھ دیا، پھر وہ چٹان کے قریب ہی کھڑا ہو گیا۔ اب اپنے آہنی عصا کا نوکیلا سرا اس نے زمین میں گاڑا اور اوپر کے حصے پر اس نے دونوں ہاتھ جمائے، ہاتھوں پر اس نے اپنی ٹھوڑی رکھی اور ایک بار پھر وہ بکھری لاشوں کا جائزہ لینے لگا تھا۔ اس کی لمحہ بلمحہ بدلتی حالت سے دونوں بوڑھے یہ محسوس کر رہے تھے جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ غول ہو، اور پردہ کے بھید کھول کر سارے لفظوں کے معانی تبدیل کر کے انگنت ذلت و پستی میں پڑے سخن کو معتبر کرنے لگا ہو۔ ان دونوں بوڑھوں نے یہ بھی دیکھا کہ لاشوں کی طرف دیکھتے ہوئے اس لنگڑے اپاہج نوجوان راہب کی آنکھوں کی دہکتی شام میں نوح اگر کے آخری کوہرام اور زخمی کہانیوں جیسی کیفیت چھا گئی تھی۔ اس کے کھردرے کھردرے الفاظ کے سے چہرے پر احساس کی آتش بری طرح بڑھ اٹھی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ نوجوان راہب اپنے آہنی عصا کی ٹیک لیے چپ اور خاموش کھڑا رہا۔ چٹان کے پیچھے چھپے ہوئے دونوں بوڑھے اسے غور سے دیکھ رہے تھے، اس لیے کہ وہ نوجوان راہب ایسے انداز میں کھڑا تھا جس سے اس کے چہرے کا ایک حصہ واضح طور پر دونوں بوڑھوں کو دکھائی دیتا تھا۔ کچھ دیر تک وہ راہب حزن و ملال اور قلق و اندوہ میں ڈوبا رہا،
फिर अचानक चट्टान के पीछे चुपकर बैठे दोनों बूढ़े चौंक से पड़े, इसलिए कि उस नौजवान ने अपने गले में लटकती हुई सुनहरी सलेब उतारकर उस चट्टान पर रख दी थी, जिसकी ओट में दोनों बूढ़े छुपे बैठे थे। इसके बाद अपने आहनी असा की टेक लिए ही लिए उसके दोनों हाथ दुआया अंदाज में बुलंद हुए। फिर उस नौजवान राहिब की आवाज सुनाई दी। वो कह रहा था, ऐ खुदावंदे ला शरीक, ऐ रबे मेहरबान, इस वसत अरसा कौनैन के अंदर खामोशी के अंत नगर में कब तक ठीकादारी की नफरत फैलती रहेगी? कब तक दिलों में वसवसे समोती खौफ की वादियों में खून की फसलें बोई जाती रहेंगी? कब तक फितरत के खून नगर में जिंदगी की अनमोल सिक्कों की खनक चारों तरफ लम्हों के खूनी भंवर में डबोई जाती रहेंगी? जहाँ तक कहने के बाद नौजवान राहिब थोड़ी देर के लिए रुका था। फिर उसकी आवाज पहले से कई गुना ज्यादा गजबनाक होकर सुनाई दी थी। सुनो दरियाए लीतवानी के किनारे निहत्ते और बेगुनाह मुसलमानों का कत्लेआम करने वालों, अनकरीब जब हम तुमसे इंतकाम लेने के लिए उठेंगे तो माजी में गुजरता वक्त तुम्हारे जुल्म के पिघले हुए सूरज को अश्कों में डलता हुआ देखेगा। सुनो मुसलमानों का कत्लेआम करने वालों, जब हम तुमसे इंतकाम लेने के लिए उठेंगे तो तुम्हारे मुकद्दर में सिर्फ दस्त के बगोलों से भरा पसे जंदान दरीचों जैसा गुप्त अंधेरा रह जाएगा। उस रोज हम तुम्हारी सांसों में जहर घोल देंगे। वो नौजवान राहिब दुआ मांगता रहा। उसी मौका पर चट्टान के पीछे छुपे दोनों बूढ़ों में से एक ने अपना मुंह अपने साथी के कान के करीब ले जाकर बड़ी राजदारी में कहा, सुन मेरे रफीक, खुदा झूठ न बुलवाए, इस राहिब की जात से भी कोई भेद वाबस्ता लगता है। मेरा दिल कहता है कि ये कोई नसरानी राहिब नहीं बल्कि हमारा अपना ही कोई भाई बंद है। मेरे ज़मीर की पुकार इस बात की शहादत देती है कि ये राहिब अजनबी नहीं, अपना ही खून है। उस बूढ़े के इन अल्फाज से उसका दूसरा साथी कुछ ज्यादा ही जज्बाती होकर बोल पड़ा था। मेरे साथी, तूने हक कहा, यकीनन तूने हक कहा। ये राहिब कोई नसरानी नहीं, अपना ही कोई मुसलमान भाई बंद है। अगर ऐसा न होता तो ये मुसलमानों के अंदाज में दुआ भी न मांगता और दुआ मांगने से पहले अपने गले से सलेब उतार कर चट्टान पर न रखता। उस नौजवान राहिब ने शायद उस बूढ़े की आवाज सुन ली थी। फौरन वो मुड़ा, चट्टान पर रखी हुई सलेब उसने अपने गले में लटकाई। एक झटके के साथ उसने अपनी तलवार बेनियाम की और लोहे की असा को टेकता हुआ वो चट्टान के करीब आया और उन दोनों बूढ़ों की तरफ देखते हुए खड़कती हुई आवाज में उसने पूछा, कौन हो तुम? अपनी जगहों पर खड़े हो जाओ, वरना याद रखो मैं एक झटके से तुम दोनों की गर्दनें काट कर रख दूंगा। उस नौजवान राहिब के इन अल्फाज के जवाब में एक बूढ़े के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। नौजवान अजनबी राहिब, तू हमारी गर्दनें नहीं काट सकता। हमने दरियाए लीतवानी के किनारे कत्ल होने वाले इन मुसलमानों से मुतल्लिक तेरे ख्यालात भी सुन लिए हैं और अपने गले से सलेब उतार कर जो तूने मुसलमानों जैसी दुआ मांगी है उसका एक एक लफ्ज भी हमारे जहन में महफूज है। कसम जमीन और आसमान को पैदा करने वाले खुदा की, जिसके सिवा कोई गैब का इल्म नहीं रखता, मेरा ज़मीर जो जिस्म के अंदर काजी की हैसियत रखता है वो ये फैसला देता है कि तू नसरानी नहीं मुसलमान है। बज़ाहिर तेरा हुलिया राहिबों जैसा ही है, या इस बात को तुम यूं कह सकते हो कि तुम्हारा ज़ाहिर नसरानी है और बातिन मुसलमान। क्या मैंने गलत कहा है? उस नौजवान राहिब की गर्दन थोड़ी देर तक झुकी रही थी। फिर उसने बारी बारी दोनों बूढ़ों की तरफ देखते हुए जवाब देना शुरू किया। मैं नहीं जानता दरियाए लीतवानी के किनारे इन मरने वालों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है और तुम कौन हो। पहले अपने मुतालिक तफसील से बताओ, फिर मैं सोचूंगा कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जा सकता है। अगर तुमने दरोगोई या झूठ से काम लिया तो सुन रखना कि मेरी तलवार दरोगो और झूठ बोलने वाले के खिलाफ फौरन हरकत में आ जाती है। मेहरबान और अजनबी राहिब, हम तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे, अपने ज़मीर के मुताबिक तुम्हारे सवाल का सच जवाब देंगे। एक बूढ़े ने हिम्मत और जवां मर्दी का मुजाहरा करते हुए कहा, सुन राहिब, मुसलमानों का एक काफिला मरतुल नौमान से मिस्र की तरफ जा रहा था कि इस जगह रुका। मुसल्ला नसरानी काफिले पर रात के वक्त हमला आवर हुए और सारे काफिले के अफराद को मौत के घाट उतार दिया और काफिले का जिस कदर सामान था वो लूट के अपने साथ ले गए। जिस वक्त हमला हुआ था उस वक्त हम दोनों इस चट्टान की ओट में लेट गए थे, लिहाजा हमला आवर हमें मुर्दा समझकर चले गए। रात के वक्त हमला आवर हर चीज समेट कर ले गए थे और उसी वक्त बारिश भी शुरू हो गई थी। ताहम वो अपने कुछ साथी यहाँ बिठा गए थे कि हो सकता है सुबह के वक्त उन्हें कुछ और माल यहाँ से मिल जाए।
उनके 6-7 साथी सारी रात यहाँ बैठकर पहरा देते रहे। वो कोहिस्तानी सिलसिले की चट्टानों में चुप कर बैठ गए थे। जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा काफिले के कुछ अफराद बच गए थे। शायद वो भी हमारी तरह किसी चट्टान की ओट में होकर अपना आप बचा गए थे। बचने वालों में 3 लड़कियां और एक बूढ़ा था। पहले हमला आवरों के साथियों ने उनकी तलाशी ली, फिर लड़कियों और बूढ़े को जुनूब की तरफ जाने वाली शहरा पर ले गए। देख राहिब, बुरा हो उन लोगों का। पहले तो उन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया। जो उनके साथी थोड़ी देर पहले 3 लड़कियों और एक बूढ़े को जुनूब की तरफ ले गए हैं। हमें खदशा है कि वो उन 3 मुसलमान लड़कियों को इज्जत और हुर्मत से महरूम कर देंगे। उस बूढ़े के इन अल्फाज से वो नौजवान राहिब तड़प उठा। तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक हमला आवरों के वो साथी 3 लड़कियों और बूढ़े को जुनूब की तरफ लेकर कब गए और उन्हें यहाँ से रुखसत हुए कितनी देर हुई है? मेरे ख्याल में उन्हें यहाँ से गए हुए कुछ ज्यादा देर नहीं हुई। इस बार दूसरे बूढ़े ने जवाब दिया था, अगर हम कोशिश करें तो उन्हें पकड़ सकते हैं। इस इंकशाफ पर वो नौजवान राहिब बड़ी तेजी से मुड़ा और अपने घोड़े की तरफ भागा था। उसके इस अंदाज से एक बूढ़े ने फिर दूसरे को मुखातब किया, मेरे भाई, लगता है ये राहिब मुसलमान भी है और लंगड़ा भी नहीं है। ये राहिब भी बना हुआ है और लंगड़ापन भी इसका मसनूई है। तूने देखा जब ये मुड़ा उस वक्त इसने अपने आहनी असा का सहारा नहीं लिया, बल्कि पूरी तरह अपने दोनों पांव पर बोझ डालते हुए मुड़ा था। और जब ये भागा था तब भी इसने बज़ाहिर असा को जमीन पर टेका, लेकिन उस पर बोझ न डाला। गोया ये लंगड़ा नहीं बल्कि अपाहज बना हुआ है। और मैं ये भी बता दूं कि ये कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि कोई इंतहाई अहम शख्सियत है जो किसी इंतहाई अहम और दुश्वार काम पर मुकर्रर किया गया है। उस बूढ़े को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि वो नौजवान राहिब अपने घोड़े के करीब गया था। घोड़े की जीन से बंधी हुई चर्मी खरजीन में से 2 सलेबें निकाली। फिर वो अपना लोहे का आसा जमीन पर टेकते हुए बड़ी तेजी से उनके करीब आया और दोनों को एक एक सलेब तमाते हुए कहा, इन सलेबों को अपने गले में डाल लो और अपने आप को नसरानी जाहिर करो, वरना याद रखो तुम दोनों बचकर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकोगे। उस नौजवान राहिब ने बड़ी हमदर्दी का इजहार करते हुए ये अल्फाज कहे थे। जवाब में 2 में से एक बूढ़ा फिर बोल पड़ा, मेहरबान राहिब, मेरा नाम नमीर बिन हमदून और मेरे साथी का नाम गसान बिन नमीस है। हम दोनों आलम हैं और इस कारवान के साथ मिस्र का रुख कर रहे थे। हमने तुम्हारे सामने अपनी सारी हकीकत खोल दी है। अब तुम भी अपने मुतलिक कुछ कहो, तुम्हारी हकीकत क्या है? जवाब में नौजवान के चेहरे पर तंज में डूबी हुई हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। सुनो इब्ने हमदून और इब्ने नमीस, जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ गौर से सुनो। मैं वही कुछ हूँ जो तुम देख रहे हो। मैंने तुम दोनों के साथ क्यों हमदर्दी की है, इसकी एक खास वजह है, जिसे जाहिर करने के लिए ये मौका दुरुस्त नहीं। अब तुम वक्त जाया किए बगैर मेरे साथ आओ। हमें उन मुसल्लह जवानों को जा लेना चाहिए जो 3 मुसलमान लड़कियों और एक बूढ़े को यहाँ से लेकर जुनूब की तरफ रवाना हुए हैं। इसके साथ ही वो नौजवान राहिब हरकत में आया, फौरन अपने घोड़े पर सवार हुआ और दोनों बूढ़ों को अपने पीछे बैठने को कहा। इस पर नमीर बिन हमदून और गसान बिन नमीस फौरन हरकत में आए और बारी बारी वो उस राहिब के पीछे बैठ गए थे। जब ऐसा हो चुका तो बरसती बारिश में राहिब ने अंगेख कर देने वाली एड़ अपने घोड़े को लगाई। जवाब में उसका घोड़ा हिनहिनाया। फिर वो कीचड़ में लथपथ बड़ी तेजी से जनूब की तरफ जाने वाली शहरा पर दौड़ पड़ा था। नौजवान राहिब के अलावा नमीर बिन हमदून और गसान बिन नमीस भी बारिश में शराबोर थे और दोनों के कपड़े यूं पानी टपका रहे थे जैसे उनके अंदर छोटी छोटी पानी की नालियां लगा दी गई हों। वो नौजवान राहिब और दोनों बूढ़े कोई 1 मील आगे गए होंगे कि शहरा के किनारे उन्हें 4 लाशें पड़ी हुई दिखाई दी। 3 लाशें लड़कियों की और 1 लाश बूढ़े की थी। उन लाशों को देखते हुए दोनों बूढ़े घोड़े से नीचे कूद गए। फिर नमीर बिन हमदून बोल पड़ा, राहिब, ये वही 3 लड़कियां और बूढ़ा है जिन्हें मुसल्लह जवान दरियाई लेतवानी के कत्लगाह से पकड़कर यहाँ लाए थे। अजनबी मेहरबान राहिब, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि तू हमें अब अपना नाम ही बता दे ताकि हम तुम्हें तुम्हारे नाम से ही मुखातब कर सकें? जवाब में राहिब फौरन बोल पड़ा, मेरा नाम लियूस है और तुम दोनों मुझे इसी नाम से मुखातब कर सकते हो। मेरे ख्याल में जिस वक्त मुसल्लह जवान इन चारों को अपने साथ लेकर जा रहे थे तो रास्ते में इन चारों ने इनसे टकराकर अपनी जानें बचाने की कोशिश की होगी। उन पर हमला किया होगा जिस पर उन्होंने इन चारों को मौत के घाट उतार दिया होगा। इन ख्यालात का इजहार गसान बिन नमीस ने डूबती आवाज और रोते अंदाज में किया था। राहिब लियूस घोड़े से उतर गया।
आओ अब इन चारों लाशों को यहाँ दफन कर दें और इसके बाद आगे बढ़कर उन मुसल्लह जवानों को तलाश करें। नमीर बिन हमदून और गसान बिन नमीस ने ल्यूस की इस तजवीज से इत्तेफाक किया। तीनों ने मिलकर चारों लाशों को दफन कर दिया था। इसके बाद ल्यूस घोड़े पर सवार होते हुए चौंक सा पड़ा। सुनो दोनों बुजुर्गों, जिन मुसल्लह जवानों ने इन चारों को कत्ल किया है, उनके घोड़ों के पाँव के निशानात यहाँ मैं आस पास देखता हूँ। आओ इन्हीं घोड़ों के पाँव के निशानात से उन्हें तलाश करें। वो घोड़ों के पाँव के निशानात लम्हा बलम्हा बारिश में मदम होते चले जा रहे हैं, पर मेरे ख्याल में इनकी मदद से हम उनका ठिकाना तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे। नमीर बिन हमदून, गसान बिन नमीस दोनों ने राहिब ल्यूस की इस तजवीज से इत्तेफाक किया। पहले की तरह वो ल्यूस के पीछे घोड़े पर बैठ गए। ल्यूस ने घोड़े को एड़ लगा दी और उसे भगाने के साथ साथ वो मुसल्लह जवानों के घोड़ों के पाँव के निशानात को भी देखता हुआ जुनूब की तरफ बढ़ रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते अचानक राहिब ल्यूस ने अपने घोड़े की लगामें खींचते हुए उसे रोक लिया था। उसकी इस हरकत पर नमीर बिन हमदून और गसान बिन नमीस दोनों परेशान हो गए थे। फिर नमीर बिन हमदून अपना मुंह नौजवान राहिब ल्यूस के कान के करीब ले गया। राहिब ल्यूस, क्या कोई गैर मामूली बात हुई है जो तुमने एकदम अपने घोड़े को रोक लिया है? इस मौका पर राहिब ल्यूस के चेहरे पर तंज और इंतकाम में डूबी हुई मुस्कुराहट फैली थी। सुनो इब्ने हमदून और इब्ने नमीस, घोड़ों के जिन सुमों का ताकुब करता हुआ मैं इस सिमत आया हूँ, वो आगे बढ़ना रुक गए हैं। गौर से देखो, सुमों के ये निशानात दाएं तरफ घूमते हुए कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर चले गए हैं। अपने दाएं जानब कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर देखो, वहाँ लकड़ी के बहुत से झूंपड़े बने हुए हैं जो यहाँ से साफ दिखाई दे रहे हैं। उनमें से कुछ झूंपड़े सलामत हैं और कुछ गिर पड़े हैं। ये वो झूंपड़े हैं जो गुज़श्ता सलीबी जंगों के दरमियान यूरोप से आने वाले नसरानी जगह जगह अपनी रिहाइश के लिए खसूसियत के साथ अपनी औरतों के लिए तामीर करते रहे थे। उनमें से कुछ गिर गए हैं, कुछ सलामत हैं और ये झूंपड़े दरिया लेतवानी के साथ साथ कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर जगह जगह दिखाई देते हैं। सुनो, मेरे ख्याल में जिन सवारों का तुम लोगों ने जिक्र किया है और जिन्होंने रास्ते में 3 लड़कियों और बूढ़े को हलाक किया है, उन्होंने बारिश से बचने के लिए दाएं जानब कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर किसी झूंपड़े में पनाह ले ली है। सुनो, मैं गो राहिब हूँ, लेकिन चूंकि उन लोगों ने इंसानियत का खून किया है, लिहाजा इंसानियत के नाते से मैं उन मुजरिमों को जिन्होंने इस कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर झोंपड़ों में पनाह ले रखी है जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उनका हलक काटूंगा। अगर तुम मेरा साथ न देना चाहो और तुम अपनी जान का खतरा महसूस करो तो तुम यहाँ से उतरकर जिस सिमत जाना चाहो जा सकते हो, पर चंद मील आगे तक अपने गलों से तुम सलेब न उतारना, और अगर तुम इस कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर तक मेरा साथ दो तो तुम हरगिज उनके साथ टकराने में मेरा साथ न देना, मेरी मदद मत करना। सिर्फ तुम वहां तक चलो, उन पर काबू पाने के बाद जो लोग मेरे हाथों काम आ जाएंगे उनके घोड़े मैं तुम्हारे हवाले करूंगा। तुम उनमें से 2 घोड़ों पर बैठ जाना, बाकी घोड़ों को हाँक कर ले जाना। मैं तुम्हें एक बस्ती का पता दूंगा, वहाँ तुम एक शख्स के यहाँ रात बसर करना, फालतू घोड़े उसके हवाले कर देना। इसके बाद मिस्र तुम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाना। क्या तुम मेरा ये मशवरा कबूल करते हो? इस मौका पर दोनों बूढ़ों ने बड़े गौर से एक दूसरे की तरफ देखा। निगाहों ही निगाहों में उन्होंने कोई आखिरी फैसला किया। फिर इस बार गसान बिन नमीस ने सिलसिला कलाम शुरू किया। राहिब ल्यूस, हम तुम्हारी तजवीज़ से इत्तेफाक करते हैं। हम तुम्हारे साथ इस कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर जाएंगे। कसम खुदावंद कुद्दूस की, जो तजवीज़ तुमने पेश की है वो नसरानियत की नहीं बल्कि इस्लाम की है। लिहाजा इस हक के लिए लड़ते हुए अगर हम दोनों की जानें भी गईं तो हम इसे अपने लिए बहुत बड़ी सादत ख्याल करेंगे। अगर कोई तेरे साथ इस कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर टकराया तो हम तेरी भरपूर मदद करेंगे। देख, वो हमारे पास डाले नहीं हैं, लेकिन हम दोनों के पास अपनी अपनी तलवारें जरूर हैं जो हमारे इस बुढ़ापे में भी हमारे दुश्मनों की गर्दनें काट सकती हैं।